class. So we are completed the communication service. After that, in this video we are going to discuss about the transportation service and warehouse services. Okay. So according to your syllabus copy, they are not very much more think about the transportation services because of everything we know. Okay. And what are the warehouses service, types of warehouses and functions of warehouses we are going to see in this video. What is the functions of warehouses we will discuss in next video. So what are the types of warehouses we are going to discuss in this video. So transportation, there is the next another activity or services important for the business. So whatever we are seeing each service, that is starting from the banking, then insurance, then communication within that, postal service within that, telecom service, transportation, warehouses, every service we are going to see with the point of view of business only. Okay. So business के लिए जो भी हमने सर्विसेज देखा है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेयरहाउसिंग होगा, ये हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि बिजनेस के लिए ये सर्विसेज क्यों नहीं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है बिजनेस सर्विसेज. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सर्विस कैसे हमें हेल्प होती है वही हमने चैप्टर में देखा है. सो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स व्हाट? Transportation means what? Transferring person or animal or any goods from one place to another place. That is a transportation service, from one place to another service. So there are three ways of transportation, that is one land, air and waterways. Okay, and development of these things comes under the transportation services. So land, air, waterways, for movement of people or animal or goods from one place to another place, for that we can call the transportation. So place of production to the consumption. So we know what is the transportation, that is the movement of persons, movement of people, or movement of animal or goods from one place to another place. For that facility we are going to call as a transportation. But according to the business point of view, how the transportation we can define? For the transportation, see, production it is going to happen at one place and consumption, that means customers are going to purchase that product at another place. So that is transportation of product, transferring product, otherwise movement of product or goods from one place to another place. That is the, for that purpose transportation it is important for the business. Okay. So जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? एक इंसान रहेगा, आदमी रहेगा, नहीं तो एनिमल्स रहेगा, और जो भी गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, वस्तु है, वो एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की आवश्यकता है. सो हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर सकते हैं? एक तो लैंड यानी कि जमीन, जो हम ज्योग्राफिकल बोलते हैं, जमीन के थ्रू हम जो भी रोड्स बनाए हैं उसके थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, नहीं तो एयर. तो थ्रू द एरोप्लेन से कुछ भी प्रोडक्ट हम भेज सकते हैं, एनिमल्स भेज सकते हैं, नहीं तो इस जगह से उस जगह जा सकते हैं. थ्रू वाटर, शिप से हम जा सकते हैं. सो देयर आर थ्री वेज टू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. ओके. सो किस लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो किस लिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोडक्शन एक जगह होती है, वो प्रोडक्ट एक जगह बनाते हैं और दूसरी जगह भेजते हैं, यानी कि कस्टमर कंजम्पशन के लिए वो दूसरी जगह जाना चाहिए, कस्टमर के पास जाना चाहिए. तो उस जगह से इस जगह तक वो प्रोडक्ट लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इम्पोर्टेंट है. तो इतना ही आपके सिलेबस में एक्सप्लेन किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. सो नेक्स्ट कंटेंट, दैट इज वेयर हाउसेस. सो वेयर हाउसेस मीन व्हाट? So it is a commercial building to store the goods and keep them safe until they are sold. So warehouses, the name itself indicates it is houses. That means it is a building. Okay. So it is a commercial building. Commercial building मतलब व्यापार के लिए जो भी बिल्डिंग बनाती है, that is a commercial building. जो भी प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स है, जो भी वस्तु है, वो प्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं जाती, उनको स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. सो जैसा कस्टमर का डिमांड है उसके हिसाब से ही वो बाहर जाना चाहिए. सो उससे पहले प्रोडक्ट बनाने के बाद वो स्टोर करना इम्पोर्टेंट है. वो प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए जो सर्विस हम यूज़ करते हैं, दैट इज द वेयर हाउसेस. ओके. प्रोडक्ट बनाया एक इंडस्ट्री में, एक फर्म में प्रोडक्ट बनाया है, गुड्स बनाया है, वो प्रोडक्ट बनाने के बाद वेयर हाउसेस में स्टोर होता है, स्टोरेज होते हैं, उसके बाद वो कस्टमर के पास जाता है. सो टू स्टोर द गुड्स एंड कीप देम सेफ अंटिल दे आर सोल्ड.
सो वेयर हाउसेस में क्यों रखा जाता है प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट को। सो सेफ्टी रहना चाहिए प्रोडक्ट के लिए कि हम उसको सपोज किसी प्रोडक्ट को एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, बाहरी टेम्परेचर हीट वगैरह होने से उस प्रोडक्ट में खराबी हो सकती है, तो वो फ्रीजिंग टेम्परेचर भी चाहिए, तो सच काइंड ऑफ वेयर हाउसेस आल्सो डेवलप। सो प्रोडक्ट खराब ना हो, प्रोडक्ट को कुछ भी डैमेज ना हो, एक केयर लेने के लिए वेयर हाउसेस चाहिए। वो बिकने से पहले, वो सोल्ड आउट होने से पहले उनकी सेफ्टी प्रोडक्ट अच्छे कंडीशन में रहने के लिए वेयर हाउसेस चाहिए। ओके, सो यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, सो कौन यूज कर सकते हैं वेयर हाउसेस यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जिन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया है वो लोग भी वेयर हाउसेस, उनका खुद का वेयर हाउसेस बना सकते हैं, तो गवर्नमेंट का भी वेयर हाउसेस, पब्लिक सेक्टर का भी वेयर हाउसेस वो यूज कर सकते हैं। सो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो होलसेलर, मतलब होलसेलर क्या करता है, इंडस्ट्री से, फर्म से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेके लाता है, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी रहता है, इसलिए उसको स्टोर करना इम्पॉर्टेंट है। सो होलसेलर भी वेयर हाउसेस यूज कर सकता है। नेक्स्ट एक्सपोर्टर मीन्स, एक्सपोर्टर मीन्स व्हाट, हमारे देश से दूसरी जगह कोई हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई हम गुड्स बेच रहे हैं, तो वो गुड्स स्टोर करने के लिए एक्सपोर्टर भी वो वेयर हाउसेस यूज कर सकते हैं। इम्पोर्टर, दूसरी देश से हमारे देश में कोई प्रोडक्ट आ रहा है, कोई गुड्स आ रहे हैं, तो वी कैन स्टोर दैट विद इन द वेयर हाउसेस। सो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। सो अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 8 marks. Okay, so most important there is class for 4 marks also. So according to exam point of view, types of warehouses is an important content. So first type, that is a private warehouse. The name itself indicates private warehouse means what, owned by manufacturer, only owner can keep the goods, benefit, that is a control and flexibility. Private warehouses means what, who is a manufacturer, so manufacturer is going to produce some product within their firm, and that firm they are going to store within their firm only, within their own warehouses. So that is the private warehouses, and only owner can store their product. No other firms, no other businessmen can permitted to store their product in their firm, in their warehouses. So what is the benefit? It will have more control of that manufacturer and flexible according to their feasibility, they can change the thing within that. So private warehouses का मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर है, जिन्होंने भी प्रोडक्ट बनाया है, उनका खुद का स्टोरेज रूम रहता है, दैट इज द प्राइवेट वेयर हाउस। उनका स्टोरेज खुद का रूम रहता है, स्टोरेज हाउस, यानी प्रोडक्ट वही बनाते हैं, वही स्टोर करते हैं, तो उनका खुद का स्टोरेज हाउस रहता है। सो उसका जो भी मैनेजमेंट कर रहा है वो खुद करते हैं। सो दैट इज द प्राइवेट वेयर हाउसेस। सो उस स्टोर हाउस में सिर्फ वो ओनर ही उनके प्रोडक्ट रख सकता है, सिर्फ ओनर ही उनके गुड्स रख सकते हैं, बाहरी लोगों को वहाँ परमिशन नहीं है उनके प्रोडक्ट रखने के लिए। सो इट इज बेनिफिट किसका क्या है, खुद का कंट्रोल रहता है, प्रोडक्ट सेफ रहने के लिए, प्रोडक्ट को कुछ भी डैमेज ना हो देखने के लिए वो ओनर ही रिस्पॉन्सिबल, खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहता है और खुद ही सभी कंट्रोल में देखता है। They have their own control within their own warehouses, that is the private warehouses. The next type of warehouses is public warehouse. By studying the chapter 3, that is the private, public and global enterprises, you are clear about what is the private sector, what is the public sector. So प्राइवेट वेयरहाउसेस में क्या था, जिसका भी फर्म है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, वो खुद का प्रोडक्ट खुद के स्टोर हाउस में रख सकते हैं, दैट इज द प्राइवेट वेयरहाउसेस. सो व्हाट इज द पब्लिक वेयरहाउसेस मींस इट इज लाइसेंस बाय गवर्नमेंट, ओनली लाइसेंस बाय गवर्नमेंट, यानी कि सपोज मैंने खुद का वेयरहाउस बनाया, मेरे पास एक बिल्डिंग है, वही बिल्डिंग खाली है और मैंने डिसाइड किया कि वो वेयरहाउस बनाते हैं, गोडाउन बनाते हैं, ओके, हिंदी में उसको गोडाउन बोलते हैं, स्टोर वो गोडाउन बनाते हैं, सिर्फ खाली मैं गवर्नमेंट से लाइसेंस ले सकती हूँ, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव अ परमिशन मी टू यूज आवर बिल्डिंग एज अ वेयरहाउसेस. सो गवर्नमेंट से सिर्फ हमें लाइसेंस लेना है, वो वेयरहाउस, वो बिल्डिंग गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, खुद का जो भी प्राइवेट लोग है वो खुद का बिल्डिंग गोडाउन बनाना चाहते हैं, खुद का एक
जो भी जगह है, बिल्डिंग है, वेयर हाउस है, दे वांट टू make it as a warehouse. They want to make it as a warehouse. For that purpose, you can take a license from a government. So खुद का बिल्डिंग है, तो आप उसको warehouse बनाना चाहते हो, तो आप गवर्नमेंट से एक लाइसेंस ले लो. So what is operate according to the government regulation? तो उसका काम कैसा होना चाहिए? आपका warehouse है तो उसका काम गवर्नमेंट ने जो भी रेगुलेशन बनाए हैं according to that उसका काम होना चाहिए. वो प्राइवेट ओनर का ही रहता है, हमारा खुद का ही रहता है, बट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना कंपल्सरी है. यू हैव टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट. हम नहीं बनाया, प्राइवेट लोगों ने ही बनाया है, बट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना, दैट इज अ पब्लिक वेयर हाउसेस. नेक्स्ट, एनीवन कैन स्टोर अ गुड्स बाय पेइंग द चार्जेस. सो कोई भी लोग उस वेयर हाउसेस में, उस पब्लिक वेयर हाउसेस में कोई भी उनका खुद का प्रोडक्ट वहाँ पे स्टोर कर सकता है. सो टेक एग्जाम्पल, आपके घर में फ्रिज है, ओके. सो फ्रिज आपका खुद का है, यानी कि आपको जो चाहिए वो आप फ्रिज में रख सकते हो, दैट इज अ प्राइवेट वेयर हाउस. आपका खुद का है, जो भी आपके घर में सामान फ्रिज में रखना चाहते हो आप खुद रख सकते हो, ओके. पब्लिक वेयर हाउसेस में क्या है, आपके पास एक बहुत बड़ा फ्रिज है, वो आपके घर में भी नहीं यूज हो रहा, तो आप पब्लिक के लिए रखते हो, मतलब कोई भी लोग आपके फ्रिज में आके वो सामान रख सकते हैं, दैट इज द पब्लिक सेक्टर. बट उसके लिए क्या, फ्रिज तो आपका है, बट आप लोगों को परमिशन दे रहे हो कि हमारे फ्रिज में आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स है, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे फ्रिज में रख सकते हो. उसके लिए हमें चार्जेस देना पड़ेगा, उसके लिए हमें रेंट देना पड़ेगा, दैट इज द पब्लिक वेयर हाउस. सिर्फ हमने गवर्नमेंट से परमिशन लिया है, सिर्फ हमने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है कि हम लोगों को परमिशन दे रहे हैं कि हमारे वेयर हाउसेस में, हमारे फ्रिज में आप कोई भी उनका सामान रख सकते हैं, दैट इज द पब्लिक वेयर हाउस. सो एनीवन कैन स्टोर गुड्स फॉर पेमेंट. तो कोई भी उनका प्रोडक्ट, उनका गुड्स, उनका सामान हमारे वेयर हाउसेस में रख सकते हैं बाय कीपिंग सम चार्जेस. सो नेक्स्ट, ओनर ऑफ गुड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. जो भी प्रोडक्ट रखे हमने पब्लिक वेयर हाउसेस में, जिन्होंने भी वो प्रोडक्ट रखा है वहाँ पे वही रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोडक्ट के सेफ्टी के लिए. यानी कि जस्ट आई टोल्ड द एग्जाम्पल, मेरे पास फ्रिज है और घर में यूज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने पब्लिक को दिया है, यानी कि कोई भी आके हमारे फ्रिज में स्टोर कर सकता है. बट वो जो स्टोर किया है प्रोडक्ट वो डैमेज हो गया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. जिसका वो प्रोडक्ट है वही रिस्पॉन्सिबल है, उसको कुछ डैमेज हो गया है, खाली मेरे वेयर हाउस में रखा है, मेरे फ्रिज में रखा है, बट उसको कुछ तो हो गया तो इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर. जिसका भी वो माल है वो रिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी डैमेज हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. सो ऑल्सो इट इज गोइंग टू पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. मीन्स व्हाट, सपोज आपको स्टोर हाउस से दूसरी जगह वो माल लेके जाना है, दूसरी जगह वो गुड्स लेके जाना है, तो पब्लिक सेक्टर उनका खुद का ट्रैवलिंग फैसिलिटी, खुद का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकती है, दैट इज द पब्लिक वेयर हाउसेस. The next is bonded warehouses. So bonded warehouses means what? Licensed by government. Obviously these warehouses just similar like the public warehouses, but government से license लेना पड़ेगा. Goods store which are imported. So within these bounded warehouses, which goods are going to be stored? Which products, which goods are imported from the another country, that goods we can store within the bounded warehouses. सो बाउंडेड वेयर हाउसेस का मतलब क्या है, एक आप बाउंडेड वेयर हाउसेस बनाना चाहते हो तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, जो भी आपके यहाँ स्टोर होगा गुड्स, वो दूसरे देश से जो भी गुड्स आया है हमारे देश में, वही गुड्स वहाँ पे, वही प्रोडक्ट वहाँ पे स्टोर होगा, वही गुड्स वहाँ पे स्टोर होगा. सो रिमूव गुड्स आफ्टर पेइंग कस्टमर ड्यूटी. सो सपोज टेक एग्जाम्पल, इट इज अ बाउंडेड वेयर हाउसेस. एक बाउंडेड वेयर हाउसेस से दूसरी देश से यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है कोई भी गुड्स, वस्तु दूसरे देश से हमारे देश में आई है, तो वो पहले बाउंडेड स्टोर हाउसेस में रखी जाती है. इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड विद इन द बाउंडेड स्टोर हाउसेस. सो यहाँ से आपको बाहर निकालना है तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, यानी कि टैक्स देना पड़ेगा. जितना भी प्रोडक्ट, जितना भी गुड्स आप वहाँ से बाहर निकाल रहे हो, सपोज आपने 1000 पीसेस दूसरे देश से लाए हो, तो यू हैव टू स्टोर दैट इज विद इन द बाउंडेड. एंड उसके बाद आपको 100 पीसेस अभी चाहिए, तो 100 पीसेस
सो उतना कस्टम ड्यूटी दे के आप वो गुड्स वहाँ से निकाल सकते हो। सो रिमूव गुड्स आफ्टर पेइंग द कस्टम ड्यूटी ओनली। सो इट इज नॉट कंपल्सरी यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी फॉर ऑल दीज गुड्स, अदरवाइज यू कैन पे इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। तो सभी एक ही बार में वो आपको टैक्स पे करना है ऐसा भी नहीं, जितना आपको वहाँ से वेयर हाउसेस से स्टोरेज हाउस से निकालना है प्रोडक्ट उतना ही आप टैक्स देके वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट फैसिलिटी ऑफ ग्रेडिंग, पैकिंग एंड समटाइम्स ब्रांडिंग ऑल्सो। सो इफ यू स्टोर दिस प्रोडक्ट विद इन बाउंडेड वेयर हाउसेस, वहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या की जाती है, ग्रेडिंग है, पैकिंग है। जो भी प्रोडक्ट आपने दूसरे देश से हमारे देश में लाया है उसको प्रॉपर पैकेज करना, वो भी काम सच काइंड ऑफ स्टोरेज हाउसेस आर गोइंग टू बी डन। सो जो भी पैकिंग करना है वो भी काम करते हैं। ब्रांडिंग यानी कि जो भी ब्रांड्स रहते हैं उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है ब्रांडिंग का, दे आर ऑल्सो गोइंग टू दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज ऑल्सो गोइंग टू गिवन बाय द बाउंडेड वेयर हाउसेस। और ग्रेडिंग ऑल्सो, ग्रेडिंग मीन्स व्हाट, एक एग्जांपल, आपने चावल तो देखे राइस, ओके, राइस एक थोड़ा बड़ा रहता है, एक मीडियम साइज रहता है, एक छोटा साइज रहता है, दैट इज द ग्रेडिंग। ओके, 7 कैरेट रहेगा, 6 कैरेट रहेगा, 10 कैरेट रहेगा, 9 कैरेट रहेगा। आपने राइस कभी तो देखा है ना, सो राइस डेली खाते हो, सो लॉन्ग ग्रेन राइस इट हैव डिफरेंट ग्रेडिंग, उसको साइज नंबर डिफरेंट आता है। मिडल साइज राइस, ओके, दैट इज हैव डिफरेंट नंबर। और जो भी छोटे छोटे राइसेस रहते हैं उसका डिफरेंट है। सो जो भी ग्रेडिंग करना यानी सेपरेशन ऑफ दैट थिंग, सेपरेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, दैट इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी इज ऑल्सो गिवन बाय द बाउंडेड वेयर हाउसेस। सो जो भी अपने दूसरे देश से माल आए तो वो साइज अलग अलग करने का काम भी ये बाउंडेड वेयर हाउसेस करते हैं। नेक्स्ट, importer can export good kept in this without paying the customer duty, very important, because यहाँ पे कौन प्रोडक्ट रखता है, बाउंडेड हाउसेस में कौन प्रोडक्ट रखता है, बाउंडेड हाउसेस में कौन गुड्स रखता है, जो भी दूसरे देश से हमारे देश में माल आया है, दूसरे देश से हमारे देश में गुड्स आया है, वही गुड्स हम बाउंडेड वेयर हाउसेस में रखते हैं। सपोज वही गुड्स हमें फिर से दूसरे देश को भेजना है, दैट इज एंट्री कोड करना है, दूसरे देश से हमने लाया है, हमारे देश से वही दूसरे देश को भेजने वाले हो, तो भी हम यहाँ पे वो प्रोडक्ट रख सकते हैं। वहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी नहीं दिया तो भी चलता है, दैट इज नॉट कंपल्सरी विदाउट पेइंग कस्टमर ड्यूटी, यानी कि टैक्स जो भी एक्सपोर्ट के ऊपर लगेगा यू हैव टू पे दैट टैक्स, कस्टम ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगती। स्टोरेज जो भी रख रहे हो उसका टैक्स यहाँ पे नहीं लगता। Next, that is the government warehouses. So name itself indicate. So which is owned, owned, managed and licensed by government. So जो भी warehouses, जो भी store houses government ने खुद ने बनाई है, government ने खुद ने बनाई है, उस warehouses को क्या बोलते हैं हम, government warehouses। यहाँ पे public warehouses का मतलब सिर्फ government का कंट्रोल रहता है, तो government ने खुद ने नहीं बनाई, प्राइवेट लोगों ने ही बनाई, बट प्राइवेट लोगों ने उस गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है। बट गवर्नमेंट वेयर हाउसेस ने, गवर्नमेंट ने ही वो वेयर हाउसेस बनाया है, गवर्नमेंट ने ही वो स्टोर हाउसेस बनाए हैं, दैट इज ओन मैनेज एंड लाइसेंस बाय गवर्नमेंट। सो एग्जांपल हमारा इंडिया का दैट इज एफसीआई। आप खाने के प्रोडक्ट पे कभी एफसीआई का मार्क देखेंगे और डिटेल डिस्क्रिप्शन उसका पढ़ो, वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट पे ऊपर इसका डिस्क्रिप्शन, खाने के प्रोडक्ट पे उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, दैट इज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट का वेयर हाउस है, यहाँ पे हम खाने की चीजें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। सो नेम इटसेल्फ इंडिकेट, सो by the minimum 10 peoples of our society, they are joined together and they made their particular warehouses to save the interest of their marketer, okay, to save the interest of their manufacturer, okay। So हमारे समाज के कम से कम 10 लोग मिलके एक स्टोरेज हाउस बना सकते हैं और उनके समाज में जो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो भी गुड्स बन रहे हैं, उनके गुड्स वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। सो उनको कम चार्जेस में स्टोर करने के लिए परमिशन देंगे। सो दिस थिंग्स रिलेटेड अबाउट द वेयर हाउसेस। सो अनदर वेयर हाउसेस फैसिलिटी, वेयर हाउसेस में कौन से फैसिलिटी देते हैं, जस्ट ये यहाँ पे दिया है, ग्रेडिंग देना, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को माल सेपरेट बनाना, पैकेजिंग करना,
ओके। और एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी देते हैं कि किस किस चीज़ में स्टोरेज का कंडीशन उस प्रोडक्ट के लिए फ्रीजिंग कंडीशन चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, वो भी मेंटेन करता है। सम warehouses also going to provide such kind of facility, that is maintaining the temperature. So these are the types of warehouses. So I hope you got the clear concept about what is being transportation, what is the warehouses, types of warehouses, that is the private warehouses, public, bounded warehouses, government warehouses and cooperative warehouses. So according to exam point of view, these types of warehouses are very important. So I hope you got the clear concept about it. Suppose still if you have any doubt, we will clarify your doubt within the live class. So thank you so much. Bye bye. Take care.